हेलो स्टूडेंट्स, our टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। 11 का टॉपिक है। इसमें बेसिक्स अपन लोग लेते हैं कि एक n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। दिस सेट इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। यदि जीरो ऐड करते हैं we get 0 1 2 3 up to infinity. So this set is called as whole numbers denoted by w. w में 0 है और नेचुरल नंबर्स है 0 1 2 3 up to infinity. इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं। नेगेटिव नंबर्स -2 -1 0 1 2 up to infinity. Is that up to -infinity. So this set is set of all integers denoted by I, capital I, और Z से भी डिनोट करते हैं set of all integers. Natural numbers में 1 2 3 up to infinity. You guys set natural numbers 0 1 2 3 up to infinity. You guys whole numbers 0 1 2 3 up to positive side up to infinity, -1 -2 -3 up to -infinity. So this set is called as integers. इंटीजर्स में ये होगा पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके और -1 से इधर के पूरे नेगेटिव इंटीजर्स। रियल नंबर एंड नंबर लाइन के ऊपर एक नंबर है 0, 0 के बाद में 1, यहाँ पे 2, -1 -2। 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर आते होंगे तो वो सभी नंबर्स and then all the numbers on number line is called as real numbers, and real numbers is denoted by R, set of all real numbers. Numbers of the form p by q, where p and q are integers, q is not equal to 0, so this number is called as a rational number. Rational number is denoted by q, set of all rational numbers. Number 2 by 3 rational number है, 2 और 3 integers है. Number 5 can be written as 5 by 1, p upon q का फॉर्म है, so 5 is also a rational number. q rational number के लिए नोटेशन है q, set of all real numbers are set of all rational numbers q. आगे आते हैं अपन लोग इक्वेशन के ऊपर। एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि x की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, if we put x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1, तो 1 स्क्वायर यानी 1, 1 माइनस 1 0, x इक्वल टू 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और मैं x इक्वल टू -1 रखा तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर है 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन फिर से सेटिस्फाई हो गया। तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 बोथ सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो गए 1 और -1 प्लस -1। अगर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। अब x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की वैल्यू 1 रखें तो 1 प्लस 1 2 आएगा, x की वैल्यू -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आता, यानी 0 नहीं आता। यानी x की वैल्यू ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, वी राइट x स्क्वायर इक्वल टू -1। -1 we denote by number I स्क्वायर से डिनोट करेंगे -1 को। x स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस I। तो दिस I इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। जो नंबर रियल नहीं है तो वो है इमेजिनरी नंबर। द नंबर I कॉल्ड एज आयोटा, I is called as iota. The number I, that is iota, is called as imaginary number. So 2i, 3i, 2 iota, 3 iota, minus 3 iota, these are the imaginary numbers. Imaginary number. The numbers
of the form b into iota, where b belongs to R and b real number है, b belongs to R and b is real number, are called imaginary numbers. Here I equal to under root of -1 or I square equal to -1. I है imaginary number है, I squared is iota, I squared is iota. बाद में डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर. Now the number of the form a plus iota into b, a plus ib या a plus iota b, where a and b are real numbers. a और b दोनों real numbers है. Will write a b belongs to R and I is iota, I equal to under root of -1. So number of the form a plus ib is called as complex number. Number of the form a plus ib is called as complex number. a और b दोनों real numbers है. I means iota, the value of I is under root of -1. Complex number is denoted by z. Z equal to a plus ib. Set of all complex numbers is denoted by C. C is a set of all complex numbers. We write C equal to set a plus ib. C is the set of all complex number, all the numbers of the form a plus ib such that a b belongs to R. A और b दोनों real numbers है. Iota I equal to under root of -1. In complex number z equal to a plus ib, a is called as real part of z. A is called as real part of z and it is denoted by RPZ. Real part of z equal to a. B is called as imaginary part of z. Imaginary part of z is denoted by IM bracket में लिखना है z. Imaginary part of complex number z and it is B. A होगा real part, B होगा imaginary part. Real part of z means RPZ, imaginary part of z means IMZ. In complex number z equal to a plus ib. A होगा real part, B होगा imaginary part. I का कोएफिशिएंट है b, I के मल्टीप्लिकेशन में b, I का मल्टीपल है b. So b is imaginary part of complex number z. IMZ. Real part of complex number z, that is RPZ, it is equal to a. So this is complex number. Algebra of complex numbers. Equality of complex numbers. दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b, सेकंड c प्लस आयोटा d. If two complex numbers are equal, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब दोनों का रियल पार्ट इक्वल, a इक्वल टू c. दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल, b इक्वल टू d. If a equal to c and b equal to d, then the complex number a plus iota b is equal to c plus iota d. यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है
a plus iota b equal to c plus iota d, a plus I into b equal to c plus I into d. When we write a equal to c, real part equal, b equal to d, their imaginary parts are equal. Two complex numbers a plus ib and c plus id are equal if and only if a equal to c and b equal to d. That is a plus ib equal to c plus id implies a equal to c and b equal to d. अब ये एक इम्प्लीकेशन है, ये डबल इम्प्लीकेशन इसलिए दिया है दोनों साइड से, ये दोनों इक्वल है, a इक्वल टू c, b इक्वल टू d, देन a प्लस i, b इक्वल टू c प्लस i d. इसके बाद में एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दो कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे z1, लेट z1 इक्वल टू a प्लस आई बी, a प्लस आयोटा बी, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d, I into d, and therefore z1 plus z2 इक्वल टू a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d. इसमें रियल पार्ट है a और c, दोनों ऐड करना है, a प्लस c प्लस इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे i इंटू बी प्लस i इंटू डी, i कॉमन इन ब्रैकेट b प्लस d. दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना रहा तो दोनों के रियल पार्ट्स एडिशन, दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स के एडिशन, दैट मीन्स द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इधर 2 प्लस 3 इंटू आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस 4 प्लस 7 आई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है. दोनों ऐड करना है तो दोनों का रियल पार्ट है 2 और 4, तो 2 प्लस 4 प्लस 3i प्लस 7i, तो प्लस i कॉमन ब्रैकेट में 3 प्लस 7, 2 प्लस 4 6 प्लस 10i. So the addition of complex numbers. Similarly, subtraction of complex numbers. Subtraction of complex numbers. Let z1 equal to a plus ib, second complex number z2 equal to c plus id, and therefore z1 minus z2 equal to z1 means a plus ib minus c plus id, it is equal to a plus ib minus c minus id.
फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस सी, दिस a माइनस सी इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस i इंटू बी माइनस i इंटू डी, यहाँ पे i कॉमन निकालने के बाद बचेगा b माइनस b, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन करते वक्त रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस सी, इमेजिनरी पार्ट b, इमेजिनरी पार्ट है d, तो i इंटू b माइनस d, सब्ट्रैक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल पार्ट्स। Then multiplication of complex numbers. Multiplication of complex numbers. Let z1 equal to a plus I into b, z2 equal to c plus I into d, and therefore z1 into z2. z1 means a plus ib into c plus id equal to मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले a और c, इनका मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी, दैट इज ए सी, प्लस a इंटू आई डी यानी i इंटू ए डी, आई ए डी, प्लस आई बी इंटू सी यानी i इंटू बी सी, प्लस आई बी इंटू आई डी, आई इंटू आई स्क्वायर, बी इंटू डी, बी डी, आई स्क्वायर बी डी, ए सी प्लस ये दोनों टर्म में से आई कॉमन इन ब्रैकेट ए डी प्लस बी सी। इमेजिनरी पार्ट नंबर के डेफिनेशन में दिए थे आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 प्लस इंटू -1 ये होगा माइनस बी डी, आई स्क्वायर मीन्स -1 इंटू बी डी दैट इज माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी इन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी, दिस इज z1 इंटू z2। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट a इंटू सी और b इंटू डी नहीं होता कि z1 इंटू z2, इट इज नॉट एज ए सी प्लस i इंटू बी डी, ये गलत है। मल्टीप्लिकेशन करना रहा तो मल्टीप्लिकेशन आएगा ए सी माइनस बी डी प्लस i इंटू ए डी प्लस बी सी, क्या है कैसे, ये मल्टीप्लिकेशन से पूरा, एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स।